लाइफ में देखिए बहुत सारी चीजें वैसे तो की है, लेकिन हाँ ये स्टैंड अप जो है वो अभी तक किया नहीं है। हालांकि अंदर मेरा वो कहते हैं ना फनी बोन, वो कभी कभी ऐसा हिलता डुलता रहता है कि यू शुड ट्राई। सो इस बार सुनते हुए उसकी मैंने सोचा कि या लेट्स ट्राई, बट अकेले नहीं होगा। आई रियली नीड समबडी टू मेंटोर मी ऑन दिस, एंड हु एल्स बेटर देन शारुल चन्ना हियर, जो इंडिया अपने टूर पर आई हुई हैं। सो इन्होंने टाइम निकाला है और इस पूरे हफ्ते मुझे मेंटोर करने वाली हैं, मुझे तैयार करने वाली है उस एक गिग के लिए जहां मैं थोड़ा फनी होते हुए बताऊंगी लोगों को कि बनिए अपने घर की फाइनेंस मिनिस्टर। सो थैंक यू सो मच शारुल फॉर डूइंग दिस फॉर अस। Thank you so much for having me, Rani. I'm really excited to be on Big FM. So first of all, tell me about your tour. See, basically, you know, before COVID, I've been to India and did my first round of, you know, shows in about 6 cities. Uske baad there was COVID, and then you know, I was talking to some of my comedian friends, and they said, Sharul, why aren't you coming back? We need more women in the scene to be doing more. And since you do Southeast Asia so much, and you know, we're well known in Singapore, come and do this and tell us your stories, right? Which are different from the stories of the ladies here. Right. So that's what it was about. I said, I have like 1 hour, 15 minutes worth of jokes now. Let me just go on stage and push the limit, come to India and see if the Indian audiences are going to enjoy me. So that's how it. So यहाँ पर पहले मैं जरा इनका इंट्रोडक्शन ढंग से कर दूं तो साउथ ईस्ट एशिया की टॉप कॉमेडियन, स्टैंड अप कॉमेडियंस की अगर आप बात करेंगे तो यस शी इज ऑन टॉप देयर। एंड डाइवर्सिटी, यस, जिसने भी आपको सजेस्ट किया वेरी राइटली सेड, क्योंकि इस इंडस्ट्री में बहुत कम फीमेल्स हैं, एंड इवन इन इंडिया बहुत कम लोग आपको ऑन स्टेज नजर आते हैं डूइंग स्टैंड अप। अभी पिछले कुछ सालों में चीजें डेफिनेटली बेटर हुई हैं, बट आई थिंक वी स्टिल हैव अ लॉन्ग वे टू गो, यू नो। सो ऐसा क्यों है? why we are not here? why? तो सबसे पहले आई थिंक ये कि हमारी जो अपब्रिंगिंग है, राइट, जिस तरीके से लड़कियां बड़ी होती हैं यहाँ पे, हमें बहुत डिस्करेज किया जाता है टू बी फनी इन एनी सेटिंग, राइट, कि आप घर में जोक्स मत क्रैक कीजिए, आप अपनी वैक्सीन कराइए और अपनी पढ़ाई करिए, और उसके बाद आपका एक पैटर्न होगा। आपको सुंदर दिखना है, आपको सुशील दिखना है, आपको इवन कभी कभी इन सर्टेन सिचुएशंस इंटेलिजेंट भी होना है, बट फनी मत होना। मतलब प्लीज ऐसा मजाक मत उड़ाओ, यू मस्ट सिट प्रॉपर्ली, टांगे खोल के मत बैठो, आपके नेल्स कैसे हैं, everything is down to our looks and our sellability, right? As a flesh, okay, even if you have like a doctorate degree, they'll be like, okay, aap doctorate, okay, शादी के बाद छोड़ दोगे ना आप, that's your masses, okay. No matter how woke the people are, and I think woke people are only in the media industry, ये media के लिए है, मतलब media में है लोग, and then of course you have some in business, but it's not a wide phenomenon yet, or education has to start from home, right? I think हमारी जो mothers के generation के लोग हैं, और अब जब हम mothers हैं, या if you are gonna have a kid, we need to educate our kids that you need to liberate your daughters at home. Yeah. And education starts at home. Your parents have to teach the girls to be open-minded, to talk openly, to be able to express themselves freely. So ये funny वाली चीज तो बहुत दूर की बात है, which is why हमारी generation में the girls are now coming up slowly, but only in metro cities where you will see, okay, and only this much. Like you can be successful, but इतना successful, like, can you make an audience laugh कितनी देर तक? Can you be a so-and-so big time seller? नहीं. So I think that it will happen soon, where one female comedian will just burst internationally and represent Indian women. And it could be anybody. I feel like it will happen. Like Aditi Mittal has been doing it for so long, and she has done so well. But one more hit, you know. I hope something even more happens for Aditi. You know, you wish this for your, and ladies, man. I mean, at least for us, वो लड़ाई नहीं होती है ऐसे. We're not like a competitive नहीं है, because we are all going through the same thing. So we're like, hey, Channa, you also do. Let's work hard together. So long answer, but that's the truth. I don't know how you're gonna cut this. वेरी वेल सेड। या हमें अभी आपने अब परवरिश की बात की, हमें तो बचपन से तो फेरी टेल्स में वो दिखाया ना कि कोई आएगा प्रिंस चार्मिंग एंड देन तुम्हारी लाइफ में हंसी खुशी लौट आएगी, ना तुम मत जुटाओ, तुम अपने आप को प्रिंस चार्मिंग के लिए तैयार करो, बस रेस्ट उस पर छोड़ दो सब कुछ। Yeah, exactly. तो थोड़ा धुन बदलते हैं यार, एंड प्लीज हेल्प मी विद दैट। सो मैं भी कोशिश कर रही हूँ, मैं भी फाइनेंस मिनिस्टर
आपसे मेरी इस पर बात हो चुकी है, तो ये कोशिश है एक और सोच बदलने की कि औरतों को पैसे मैनेजमेंट सीखने की जरूरत नहीं। लाइक कमाना बचाना हमें आता है, वो हमने सीख रखा है कि इतने पैसे में घर कैसे चलाना है, बट व्हेन इट कम्स टू लाइक कि इन्वेस्टमेंट्स क्या करने हैं, या इंश्योरेंस कौन सी आपके हिसाब से रही रहेगी, आपका प्रोफाइल अपना होना चाहिए, यू शुड नो अबाउट द मार्केट, ये सारी चीजें नंबर समझ नहीं आते। ये हाँ, है ये मैं सिर्फ जो पढ़ी लिखी नहीं है, जिन्हें गिनती नहीं आती, उसकी बात नहीं कर रही हूँ मैं। आई मीन वेल एजुकेटेड जो मतलब 6 डिजिट्स में कमाई कर रही हैं, उनका ये जवाब होता है। तो ये हम कोशिश कर रहे हैं। एंड शारुल, आई पर्सनली बिलीव कि जो बात हंसते हंसते कह देते हो ना आप, वो दूर तक जाती है। सो यस, यहाँ इसलिए मैं आपकी मदद चाहूंगी। मुझे एक तैयार करना है यार, कि कुछ तो स्टैंड अप करना है स्टेज पर। हेल्प मी, टेल मी द पॉइंट। ओके, सबसे पहले स्टैंड अप के लिए ना एक फंडा अपनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। वो एक, यू नीड टू क्रिएट टेंशन एंड देन रिलीज टेंशन। ओके, ये एक फंडा लाइफ के हर एस्पेक्ट में यूज होता है। अभी लोगों को समझ गया तो ठीक है, क्रिएट टेंशन रिलीज टेंशन, बस। ओके, सो आपको क्रिएट करना है टेंशन कमरे में, कोई भी स्टेटमेंट हो। से फॉर एग्जांपल, I want to make a statement that I called up my mother-in-law and she picked up the phone. I said, "Hello, auntie." And then I created tension. And then I say, I still call her auntie because I don't like my mother-in-law. Release tension. So you have to create some kind of suspense with your first two statements, which is your setup. Then punchline में आपने वो टेंशन को रिलीज करना है। अब ये किसी भी चीज में हो सकता है, right? You can put surprises in, right? For example, jokes, like you can talk about something, then quickly switch to the other side. So there are various ways to write jokes. Joke writing एक difficult skill है, but in every joke you see now, if you see any content, whether you can see Zakir Khan or whoever on stage, आप देखेंगे कि वो टेंशन क्रिएट कर रहे हैं और टेंशन रिलीज कर रहे हैं। और ये आपका लॉन्ग फॉर्म में हो सकता है, शॉर्ट फॉर्म में हो सकता है। ये जोक एक सेंटेंस का हो सकता है या 10 मिनट की कहानी हो सकती है। अच्छा, इसके जॉनरा भी होते हैं क्या? लाइक स्टैंड अप के जैसे ऑब्जर्वेशनल कॉमेडी होती है, पॉलिटिकल कॉमेडीज करते हैं लोग, देन ऐसे ऐसे जॉनरा भी होते हैं। आई थिंक ऐसा है ना, अगर आपके पास 1 घंटे के जोक्स हैं तो फिर आप जॉनर में उसको डिवाइड कर सकते हैं। बट जनरली ऐसा नहीं है कि कोई सिर्फ पॉलिटिकल ह्यूमरिस्ट, आई मीन हाँ होते हैं जो लिखते हैं पॉलिटिकल ह्यूमर फॉर लाइक मे बी द पेपर्स और ऑनलाइन, बट generally a comedian is talking about something that affects them the most. So for example, अगर आप अपनी phase, whatever phase of life you are in, अगर आप इस phase में आपको ऐसा लगता है कि अभी मेरे पीछे लोग पढ़ रहे हैं कि अब शादी करो, so आपके लाइफ में वो प्रेशर होगा, तो आपके जोक्स भी वैसे ही निकलेंगे। If you have been, say, some people are getting retrenched, right? Or some people are not having kids, they will write that kind of jokes. Like I had an opening act in Singapore, and she had a 6-minute act, और 6-minute act में वो उसने आपने IVF के बारे में jokes किए थे। So whatever phase you are in, you're going to joke about that. That's what's affecting you. And because comedy tragedy से ही निकलती है, right? Yeah. है ना, तो आपको पता करना चाहिए कि आपकी ट्रेजेडी लाइफ की अभी इस टाइम पे क्या है, और अब आप कैसे उससे कॉमेडी निकालेंगे, और अपना भी आप थोड़ा सा थेरेपी करेंगे और दूसरों को भी दूसरों। अच्छा, सो जितना मैं समझी हूँ कि दैट मीन्स अगर मुझे अपना गिग तैयार करना है फॉर मैं भी फाइनेंस मिनिस्टर, वेयर आई एम इनकरेजिंग फीमेल टू कि भाई कर लो, अभी तक नहीं किया तो कर लो, तो ये सिचुएशनल और ऑब्जर्वेशनल मुझे रखना चाहिए, ज्यादा कनेक्ट जाएगा। हाँ जी, और अब क्योंकि आप रेडियो के लिए कर रहे हैं और बहुत चीजें आप रेडियो पे नहीं बोल सकती हैं, तो आपको फिर आपका एक ये मीटर रहेगा कि क्लीन कॉमेडी करनी है, क्योंकि ये कुछ भी हो सकता है। क्लीन कॉमेडी, ये आप क्लीन कॉमेडी की तरफ जा रही हैं, एंड यू आर राइट। फर्स्ट टू एक्सप्लोर की व्हाट इज वुमेन्स रिलेशनशिप विद मनी। सबसे पहले तो ये क्वेश्चन होगा कि हम पैसे को कैसे देखते हैं और कैसे ट्रीट करते हैं, राइट? तो हमारे वॉलेट्स में पैसे कैसे रखे जाते हैं, हम किस चीज के लिए पैसे निकालते हैं और किस चीज के लिए बार्गेनिंग करते हैं।
राइट? ओके ओके, धनिया पत्ता के लिए हाँ, लड़ाई सो नहीं फॉर करेंगे, एग्जाम्पल, लेकिन बड़े रेस्टोरेंट में हाँ, जाकर नहीं करेंगे कि इज्जत खराब हो जाएगी अपनी। करेक्ट। हाँ अच्छा, एलवी का बैग ले लेंगे, पर हाँ, दुकानदार के लिए एक एक भिंडी के लिए लड़ेंगे, लड़ेंगे। राइट? पर हाँ, बट एलवी का बैग के लिए आप नहीं कर सकते ना। कैन यू इमेजिन इफ वी स्टार्ट बिहेविंग एट द एलवी शॉप लाइक, प्लीज ना आधा कम कर दो, थोड़ा कम कर दो यार, चलो चलो पार्टी है मेरी मैं यार, रेगुलर कस्टमर हूँ इधर। चलो अगली बार ले लेना। हाँ, हाँ, अगली बार ले लेना ना। सो इफ यू डू दैट कंपैरिजन, फर्स्ट थिंग इज व्हाट इज आवर रिलेशनशिप विद पैसा। लवली। और अच्छा, दूसरी बात ये है कि हाँ, हाँ, बताइए। प्लीज कंप्लीट, या No, no, it's okay, it's okay. Go ahead, go ahead, please. I think something on your mind that was very exciting that I yeah, want to hear. because I wanted to ask you, what was the phase in your life when you started doing comedy, and I hope मतलब वो tragedy से ना निकली हो. When was it? एक्चुअली वो हर चीज कॉमेडी ट्रेजेडी से ही निकलती है और डिफरेंट तरीके की होती है। तो फॉर मी दैट टाइम आई हैड जस्ट कम आउट ऑफ ड्रामा स्कूल इन सिंगापुर, एंड सिंगापुर में दे वर नॉट गेटिंग ब्राउन गर्ल्स टू बी कास्टेड इन प्लेज और टीवी सीरीज एज अ मेन लीड बिकॉज इट्स अ मेजर चाइनीज पॉपुलेशन। तो Hmm. ब्राउन गर्ल्स के लिए रोल ही नहीं थे। सो आई वुड प्ले लाइक मेड, which is not Hmm. wrong, but like maid, like all these, like maid, abused maid, maid who robs, maid, you know. So there's a series of Crime Watch जो आपका क्राइम पेट्रोल है, Hmm. मैं उसका चेहरा थी। बहुत डिप्रेसिंग था वो मेरी लाइफ। यही है वो जो घर में पता चोरियां नहीं क्यों इंडियन इंडियन लोग ही चोरी करते हैं यार, ये इंडियन लोगों का क्या रोल। सो सो आई वाज लाइक, नहीं करना है मेरे को, नहीं करना है, दिस इज नॉट माय करियर, राइट, ये मेरे को नहीं करना है। So I was very upset, but I was teaching speech and drama, I was doing everything, but eventually I was an actor that Hmm. time. And so there's a comedy club that had just come up in the new phase after Russell Peters had burst. Comedy sort of took off in Asia. Yeah, yeah, yeah. You know, like how you guys had AIB and Veer Das coming up here. At that time in Singapore, there was also a new comedy scene coming up. Hmm. And वहाँ पे औरतें नहीं कर रही थी। Hmm. तो जो क्लब का ओनर था उसने बोला, शारुल यार तू एक्ट्रेस है, यहाँ पे आती है, 6 महीने हो गए तेरे को आए हुए, प्लीज तू थोड़ा सा कर देना, 3 मिनट कर देना, थोड़ा 3 मिनट करके कुछ भी बोल देना ना, कोई भी औरत नहीं जान करती, देयर इज नो फेमिनिन एनर्जी ऑन स्टेज। सो आई वेंट अप एंड देन आगे ना 4-5 वाइट लड़के बैठे हुए थे, Hmm. ठीक है, फर्स्ट रो ऑडियंस में। एंड forget getting validation from Indian men in Singapore क्योंकि ज्यादा है ही नहीं, क्योंकि मेजोरिटी चाइनीज है, आई वुड गेट नो अटेंशन। इंडियन आर्मी थे सिर्फ, मतलब एक दो जो भी कम्युनिटी बहुत छोटी है। बट टू गेट वैलिडेशन फ्रॉम व्हाइट मैन, स्पेशली कमिंग फ्रॉम अ हिस्ट्री ऑफ ऑलवेज वांटिंग व्हाइट एक्सेप्टेंस, Yeah. ओके, वो 4 व्हाइट लोग मेरे जोक्स पे हंसे, वो लड़के, Ah, एंड आई एम लाइक, इन चारों से मैं शादी कर सकती हूँ, अभी। अभी करूंगी मैं इनसे शादी। So when I got that acceptance, I was blown away. Rani, I Wow. was like, this is my career, right? मैं खुद राइटर, मैं खुद प्रोड्यूसर, मैं खुद डायरेक्टर, मैं खुद परफॉर्मर, मुझे इंस्टेंट वैलिडेशन मिला, मैं खुद के पैसे लेके खुद जाके घर सो जाऊंगी। Hmm. That Hmm. was the start. And what do you think, for a comedian who is performing on stage, कितना value add हो जाता है if you have a acting background or acting skills? वैल्यू एड होता है क्योंकि आपका थोड़ा सा बैकग्राउंड, आपको कॉन्फिडेंस है स्टेज पे, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस जो है, और आपकी वॉइस मॉड्यूलेशन, जो बेसिक स्किल्स है। हैविंग सेड दैट, इट्स नॉट अ प्री रेक्विजिट, बिकॉज जो एक्टर्स होते हैं वो फोर्थ वॉल को ब्रेक नहीं करते, वो हमेशा ऑडियंस की तरफ देख के परफॉर्म नहीं करते हैं। मैं बहुत एक्टर्स को जानती हूँ जो ऑडियंस को फेस करके बात नहीं कर सकते, मतलब ज्यादा, दे कैन नॉट ब्रेक द फोर्थ वॉल एंड एड्रेस देम, बट एक्टर्स बहुत अच्छे हैं। So it takes a different kind of confidence to be knowing your material, talking to the audiences and looking at them. So acting is not a prerequisite actually, but it helps to have some kind of exposure on stage and to be comfortable with your body and voice modulation and basic stuff, which can be taught even in stand up. अच्छा, और गिग नहीं चला, कोई नहीं हंसा, क्या करेंगे? कोई नहीं हंसा, तो फिर आप घर जाते हो और आप बहुत रोते हो, और फिर आपके एक क्लॉक है
11 बजे का अगले दिन तक। तो अगर आपने अच्छा किया, आपके पास अगले दिन 11 बजे तक है टू कॉल योर एंटायर फैमिली, फ्रेंड्स, फेसबुक, सबको बताओ कि तुमने किल किया है। और अगर नहीं किया है तो तुम अकेले रो, वो भी 11 बजे तक, और 11 बजे के बाद तुम अपनी पूरा वो शर्म उतार के फिर से करो। That's the only way to do this, okay? There is no other way, we know. That's how comedians have to survive. There is trauma you have to get, which is why comedians sort of कुछ tragedy दे जल्दी से they will crack a joke क्योंकि they want to release the tension of like they're like okay ठीक है, हो गया ना, अब क्या करेंगे, next audience. You're only as good as your last performance, and your last performance will be forgotten really fast. So you have to keep doing it. So basically मुझे जो समझ आ रहा है कि सिर्फ हंसाना ही इरादा नहीं, वो तो है, बट हंसाते हुए ये बताना भी है कि औरतें भी हंसा सकती है। तो यू आर ऑन अ मिशन यार शाहरुख। So Yeah, you have to keep doing this. yeah. So congratulations and all the best for that. And thank you so much for all your time. No, thank you for having me. It was finally very nice to see you and hear your voice. Same here. Thank you so much. Thank you. Thank you, darling. Thank you. Bye. 92